بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 17۔ اس واقعے کے بعد اگلے چند ہفتے وہ لاہور میں بھی کچھ محتاط رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے ہر ڈر خوف ختم ہونے لگا۔ امامہ کی فیملی کی طرف سے اس بار اس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں ملی تھیں جیسے امامہ کے گھر سے چلے جانے پر سکندر کی فیملی کو ملتی رہی تھی۔ فوری اشتعال میں آ کر ہاشم اور ان کے بیٹے ان پر حملہ کرنے کی غلطی تو کر بیٹھے تھے، لیکن بہت جلد ہی انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ امامہ کو زبردستی واپس لے جانا اب ان کے مسائل کو بڑھا سکتا تھا، کم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جھوٹ جو امامہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں بول رکھے تھے، ان کے کھل جانے کا مطلب رسوائی اور جگ ہسائی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اسے پڑا رہنے دینا زیادہ سمجھداری تھی۔ ان کا واسطہ سکندر جیسی فیملی سے نہ پڑتا تو وہ اس معاملے پر اپنی انا کو اتنا نیچے نہ لاتے، لیکن یہاں اب مجبوری تھی۔ پولیس اسٹیشن میں تصفیے کے دوران سکندر نے ہاشم مبین کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ سالار اور امامہ کو کسی بھی طرح پہنچنے والے نقصان کی ذمہ داری وہ ہاشم کے خاندان کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ڈالیں گے۔ عام حالات میں ہاشم اس بات پر مشتعل ہوتے، لیکن ایک رات حوالات سے نکلنے کے لیے ہر طرح کے اثر و رسوخ استعمال کر کے ناکام ہونے کے بعد ان کا جوش ہوش میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ جہاں تک سالار اور امامہ کا تعلق تھا، ان کے لیے یہ سب کچھ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا۔ وہ خدشات جن کا شکار وہ اسلام آباد میں قیام کے دوران ہوتے تھے، وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے تھے، اور یہ خاص طور پر امامہ کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کبھی اتنی آزادی کے ساتھ رہ سکے گی۔ سالار نے ٹھیک کہا تھا، چند ہفتوں میں اس کی فیملی کا رویہ پھر پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا، حتیٰ کہ طیبہ کی تلخی بھی ختم ہو گئی تھی، اور اس میں زیادہ ہاتھ امامہ کا ہی تھا۔ وہ فطرتاً صلحجو اور فرما بردار تھی، رہی صحیح کسر اس کے حالات نے پوری کر دی تھی۔ پیچھے میکا ہوتا تو شاید کوئی بات بری لگنے پر وہ بھی اس طرح موڈ آف کرتی جس طرح سکندر کی دوسری بہویں کبھی کبھار کرتی تھیں، مگر پیچھے بیگج کے سوا کچھ نہیں تھا، اور احسان مند ہونے کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ وہ اس شخص کی فیملی تھی جو اسے سر پر اٹھائے پھرتا تھا۔ کوئی وسیم ہاشم صاحب ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے، اپنے آفس کی کرسی میں جھولتا سالار کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے کانٹیکٹس کی لسٹ کھنگالی تھی، اور وہاں صرف ایک وسیم ہاشم تھا۔ اسلام آباد سے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں، ریسیپشنسٹ نے مزید بتایا۔ بھیج دو۔ اس نے انٹر کام رکھ دیا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آج کے دن وہ ایسے کسی وزٹ کے لیے تیار نہیں تھا۔ وسیم کے وہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ دونوں خاندانوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو چند ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تبھی وسیم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ساکت ہوئے تھے، پھر سالار نے ہاتھ بڑھایا، وسیم نے بھی ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ ایک طویل عرصے بعد ان دونوں کے درمیان ہونے والی وہ پہلی ملاقات تھی۔ کیا لوگے، چائے، کافی؟ سالار نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں، وسیم نے جواباً کہا۔ وہ دونوں کسی زمانے میں بہت گہرے دوست تھے، لیکن اس وقت ان کو اپنے درمیان موجود تکلف کی دیوار کو ختم کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سالار نے دوبارہ کچھ پوچھنے کی بجائے انٹر کام اٹھا کر چائے کا آرڈر دے دیا۔ امامہ کیسی ہے؟ اس کے ریسیور رکھتے ہی وسیم نے پوچھا۔ شی از فائن، سالار نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، ایڈریس تھا میرے پاس تمہارے گھر کا، لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں، وسیم نے بے حد جتانے والے انداز میں اسے کہا۔ ظاہر ہے تمہیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ میں کہاں کام کر رہا ہوں، تو ہوم ایڈریس جاننا زیادہ مشکل تو نہیں ہے، سالار نے بے حد معمول کے لہجے میں اس سے کہا۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس سے، وسیم نے کہا۔ مناسب تو شاید نہ لگے، لیکن پھر بھی پوچھوں گا تم سے، کس لیے؟ سالار نے جواباً بڑے فرینک انداز میں کہا۔ کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس، وسیم نے جواباً کہا۔ اس دن ریسٹورنٹ میں جو چٹ وہ تم نے بھیجی تھی، میں جانتا ہوں، سالار نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وسیم ایک لمحے کے لیے بول نہیں سکا، پھر اس نے کہا، تم نے اور امامہ نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط کیا۔ وسیم چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولنے لگا تھا۔ سالار نے اس کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن اب جو بھی ہوا وہ ہو چکا۔ میں امامہ سے ملنا چاہتا ہوں۔
تمہاری فیملی کو پتہ ہے؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، انہیں پتہ چلے گا تو وہ مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے۔ سالار اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اس کا سچ اور جھوٹ نہیں جان سکتا تھا، اس کی نیت کیا تھی وہ یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اور امامہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، وہ یہ ضرور جانتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس رات وسیم نے اسے امامہ کے ساتھ دیکھ کر اسے باپ بھائی کے دیکھے جانے سے پہلے متنبہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سالار کے لیے پھر یہ بھی مشکل تھا کہ وہ اسے امامہ سے ملنے کی اجازت دے دیتا۔ اس میل جول کا پتہ چلنے پر امامہ کی فیملی کے لیے اسے نقصان پہنچانا بہت آسان ہو جاتا۔ وہ اگر اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچ سکتے تھے تو وہاں سے امامہ کو کہیں اور لے جانا بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وسیم کسی غلط ارادے سے اس کے پاس نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وسیم، میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کا کوئی فائدہ ہے، اس نے بالآخر بہت صاف الفاظ میں اس سے کہا۔ امامہ میرے ساتھ خوش ہے، اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہے، میں نہیں چاہتا وہ اپسیٹ ہو یا اسے کوئی نقصان پہنچے۔ میں نہ تو اس کو اپسیٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، میں بس کبھی کبھار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کچھ بےتابی سے کہا۔ میں اس پر سوچوں گا وسیم، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں استعمال کر کے کوئی… وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے، ایسی کوئی خواہش ہوتی تو اتنے سالوں میں تم سے پہلے رابطہ کرتا۔ میں جانتا تھا وہ تم سے شادی کر کے گھر سے گئی ہے، تم انوالوڈ تھے پورے معاملے میں، لیکن میں نے اپنی فیملی کو کبھی یہ نہیں بتایا۔ سالار ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے کہا، وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ نہیں تھی، نہیں ہوگی، لیکن وہ تم سے شادی کر کے گئی تھی، یہ میں جانتا تھا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ سالار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے دوستوں کا سرکل تقریباً ایک ہی تھا، اور اس میں اگر کسی نے امامہ اور اس کی شادی کے حوالے سے کچھ حقیقی اطلاعات وسیم کو دے دی تھیں تو یہ کوئی اتنی حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ میں سوچوں گا وسیم۔ سالار نے بحث کرنے کی بجائے پھر وہی جملہ دہرایا۔ وسیم مایوس ہوا تھا۔ میں 2 دن کے لیے ہوں لاہور میں، اور یہ میرا کارڈ ہے، میں اس سے واقعی ملنا چاہتا ہوں۔ وسیم نے مزید کچھ کہے بغیر جیب سے ایک کارڈ نکال کر ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس رات وہ خلاف معمول کچھ زیادہ خاموش تھا۔ یہ امامہ نے نوٹس کیا تھا، لیکن اسے وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آفس میں کام کے پریشر کو ذمہ دار گردانا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کام کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسٹڈی روم میں جانے کی بجائے اس کے پاس لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ پھر بھی وہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ 5-10 منٹ کی خاموشی کے بعد امامہ نے بالآخر ایک گہرا سانس لے کر اسے کہتے سنا، امامہ، اگر تم وعدہ کرو کہ تم خاموشی سے، تحمل سے میری بات سنو گی، آنسو بہائے بغیر، تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیا کہنا ہے؟ وہ کچھ حیران تھی۔ وسیم تم سے ملنا چاہتا ہے، اس نے بلا تمہید کہا۔ وہ ہل نہیں سکی۔ وسیم، میرا بھائی؟ امامہ نے بالآخر کہا۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ سالار نے سر ہلایا۔ پھر وہ اسے اپنی اور اس کی آج کی ملاقات کی تفصیلات بتانے لگا، اور ان تفصیلات کے دوران برسات شروع ہو چکی تھی۔ سالار نے بے حد تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تحمل کے علاوہ وہ اور کس چیز کا مظاہرہ کر سکتا تھا؟ تم نے اسے یہاں کیوں نہیں آنے دیا؟ تم اسے ساتھ لے کر آتے۔ اس نے ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گفتگو کے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹی۔ مجھے پتا تھا وسیم مجھے معاف کر دے گا، وہ بھی مجھے اتنا ہی مس کرتا ہوگا جتنا میں اسے کرتی ہوں۔ میں تم سے کہتی تھی نا کہ وہ… سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے امامہ، میں نہیں جانتا وہ کیوں ملنا چاہتا ہے تم سے، لیکن اس کے تمہارے ساتھ ملنے کے بڑے نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ سالار اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔ وہ وسیم کے حوالے سے واقعی کچھ خدشات کا شکار تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت اچھا ہے، تم اسے فون کر کے ابھی بلا لو، میں کل اسے بلواؤں گا۔ لیکن وہ اگر کبھی اکیلے یہاں آنا چاہے یا تمہیں کہیں بلائے تو تم نہیں جاؤ گی، سالار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور میں ایک بار پھر دہرا رہا ہوں، نہ وہ یہاں اکیلا آئے گا، نہ تم اس کے فون کرنے پر کہیں جاؤ گی۔ سالار نے بڑی سختی سے اسے تاکید کی تھی۔ میں اس کے بلانے پر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن اس کے یہاں آنے پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ اس نے احتجاج کیا۔ وہ میرے گھر پر ہوتے ہوئے آئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اکیلا یہاں نہ آئے،
वो तो खैर मैं नीचे सिक्योरिटी वालों को भी बता दूंगा, वो मेरा भाई है सालार। इमामा को बेइज्जती महसूस हुई। जानता हूँ, इसीलिए तुमसे ये सब कुछ कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे हवाले से उस पर या किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ तुम्हें उससे मिलना है या नहीं। अगर तुम्हें बहस करनी है इस इशू पर तो बेहतर है वसीम आए ही नहीं। सालार ने उसे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया। ठीक है, मैं उसे अकेले नहीं बुलाऊंगी यहाँ। उसने आंखें रगड़ते हुए फ़ौरन से पेशतर घुटने टेक दिए। मुझे उससे फ़ोन पर बात करनी है। सालार ने कुछ कहने की बजाय वसीम का विजिटिंग कार्ड लाकर उसे दे दिया। वो खुद स्टडी रूम में चला गया था। चंद बार बेल होने पर वसीम ने फ़ोन उठाया था और उसकी आवाज़ सुनने पर इमामा के हलक में आंसुओं का फंदा लगा था। हेलो, मैं इमामा हूँ। वसीम दूसरी तरफ कुछ बोल नहीं सका था और जब बोलने के काबिल हुआ तब तक उसकी आवाज़ भी भर्राने लगी। वो 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहे, बेहंगम, बेरब्त, बेमकसद, खामोशी के लंबे वक्फों वाली गुफ्तगू। लेकिन इस गुफ्तगू में कोई गिले शिकवे नहीं हुए थे, कोई मलामत मुजम्मत नहीं हुई थी। वक्त अब इतना आगे गुजर चुका था कि ये सब कहना बेकार था। वसीम शादी कर चुका था और उसके 3 बच्चे थे। फैमिली में और भी बहुत से अफराद का इजाफा हो चुका था। वो बहते आंसुओं के साथ इजाफे की तफसीलात सुनती रही। सालार 2 घंटे के बाद स्टडी से निकला था और इस वक्त भी लाउंज में फ़ोन कान से लगाए सुर्ख आँखों और नाक के साथ फ़ोन पर वसीम से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। वो उसके पास से गुजर कर बेडरूम में गया था और उसे यकीन था इमामा ने उसे एक बार भी सर उठाकर नहीं देखा था। वो सोने के लिए बेड पर लेटने के बाद भी बहुत देर तक इस नई डेवलपमेंट के बारे में सोचता रहा था। पता नहीं ये ठीक हो रहा था या गलत। वो इमामा का कोई दूसरा भाई होता तो वो कभी इमामा से उसका राब्ता ना करवाता, लेकिन वसीम के हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात रखने के बावजूद किसी हद तक कुछ नरम गोशा रखने पर मजबूर था। अगर उसकी फैमिली का एक फ़र्द भी उसके साथ कुछ राब्ता रखता तो वो जानता था कि इमामा ज़हनी तौर पर बहुत बेहतर महसूस करेगी। अपने पीछे अपनी फैमिली की अदम मौजूदगी का जो एहसास कमतरी वो लिए हुए थी, वो इतने महीनों के बाद कम अज़ कम सालार से ढका छुपा नहीं था। वसीम अगले दिन 2 बजे आया था और 2 बजे तक इमामा को घर में किसी मर्द की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ था। वह मुलाजमा के साथ खाना तैयार करते हुए उससे अपनी फैमिली की बातों में मसरूफ़ थी। इस ताज़ा तरीन अपडेट के साथ जो उसे रात को वसीम से मिली थी, उसने पहली बार उसे मुलाजमा के साथ इतने जोश व जज्बे से बात करते हुए सुना था और वह हैरान था। हैरानगी इस कैफियत को इतने मौसर तरीके से बयान नहीं कर पाती। हैरानगी इस कैफियत को इतने मौसर तरीके से बयान नहीं कर पाई। वसीम का इस्तकबाल उसने सालार से भी पहले दरवाजे पर किया था। बहन और भाई के दरमियान एक जज्बाती सीन हुआ था जिसमें सालार ने दोनों से तसल्ली के चंद अल्फाज कहकर कुछ किरदार अदा किया था। उसके बाद 6:30 बजे वसीम की मौजूदगी तक वो एक खामोश तमाशाई का रोल अदा करता रहा था। वो खाने की टेबल पर मौजूद ज़रूर था, मगर उससे महसूस हो रहा था कि उसका वहाँ होना या ना होना बराबर था। इमामा को भाई के अलावा कोई और नज़र आ रहा था, ना किसी और का होश था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो टेबल पर मौजूद हर डिश अपने हाथों से वसीम को खिलाए। इतने महीनों में ये पहला मौका था कि इमामा ने खाने की टेबल पर उसे कुछ सर्व नहीं किया था। वो उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन ये भी पहला मौका था कि वहाँ उसके होते हुए भी वसीम और उसके दरमियान सिर्फ चंद रस्मी जुमलों का तबादला हुआ था। फिर वो और इमामा आपस में गुफ्तगू करते रहे थे। इमामा, ये वसीम नामा बंद हो सकता है अब। वो तीसरा दिन था जब डिनर पर बिलाखिर सालार की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो 3 दिनों से मुसलसल नाश्ते, डिनर और रात सोने से पहले सिर्फ वसीम की बातें बार बार सुन रहा था। इमामा बुरी तरह वसीम पर फिदा थी। ये सालार को अंदाज़ा था कि वो वसीम से मिलने के बाद खुश होगी, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी खुशी इस इंतहा को पहुंचेगी कि खुद उसे मसला होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब? वो हैरान हुई थी। मतलब ये कि दुनिया में वसीम के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनकी तुम्हें परवाह करनी चाहिए। सालार ने उसे इनडायरेक्ट अंदाज में कहा। तुम्हें मेरा वसीम के बारे में बातें करना अच्छा नहीं लगता? उसने यकदम जैसे कोई अंदाज़ा लगाया और उसके लहजे में ऐसी बेयकीनी थी कि वो हाँ नहीं कह सका। मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगता है? वैसे ही कह रहा हूँ तुम्हें। वो बेसाख्ता बात बदल गया। हाँ, मैं भी सोच रही थी, तुम ये कैसे कह सकते हो? वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। वो यकदम मुतमईन हुई। सालार उससे ये नहीं कह सका कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है नहीं, कभी था। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता था वो। सालार खाना खाते खाते रुका। मेरे बारे में क्या? सब कुछ, वो उसी रवानी से बोली। सालार के पेट में गिरहें पड़ी।
सब कुछ क्या? मतलब जो कुछ भी तुम करते थे। सालार की भूख उड़ी थी। मसलन वो पता नहीं अपने किन खदशात को ख़त्म करना चाहता था। वो सोच में पड़ी, जैसे तुम जिससे ड्रग्स लेते थे उनके बारे में, और जब तुम लाहौर में अपने कुछ दूसरे दोस्तों के साथ रेड लाइट एरिया गए थे तो तब भी। वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। पानी पीते हुए सालार को उच्छू लगा था। तुम्हें उसने ये भी बताया है कि मैं? सालार खुद भी अपना सवाल पूरा नहीं दोहरा सका। जब भी जाते थे तो बताता था। सालार के मुंह से बेख्तियार वसीम के लिए ज़ेर लब गाली निकली थी और इमामा ने उसके होंठों की हरकत को पढ़ा था। वो बुरी तरह अपसेट हुई। तुमने उसे गाली दी है? उसने जैसे शॉक्ड होकर सालार से कहा। हाँ, वो सामने होता तो मैं उसकी 2-4 हड्डियाँ भी तोड़ देता। वो अपनी बहन से ये बातें जाकर करता था, और मेरी बातें? आई कांट इमेजिन। वो बुरी तरह खफा हुआ था। सब कुछ की 2 झलकियों ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। तुम मेरे भाई को दोबारा गाली मत देना। इमामा का मूड भी ऑफ हो गया था। वो खाने के बर्तन समेटने लगी। सालार जवाबन कुछ कहने की बजाय बेहद खफगी से खाने की मेज़ से उठ गया था। वो तकरीबन 2 घंटे के बाद बेडरूम में सोने के लिए आई थी। वो उस वक्त मामूल के मुताबिक अपने ईमेल्स चेक करने में मसरूफ़ था। वो खामोशी से अपने बेड पर आकर कंबल खुद पर खींचते हुए लेट गई थी। सालार ने ईमेल चेक करते गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसे इसी रद्द-ए-अमल की तवक्को थी। वो रोज़ सोने से पहले कोई किताब या नावल पढ़ती थी और किताब पढ़ने के दौरान उससे बातें भी करती थी। ये खामोशी उस दिन होती थी जिस दिन वो उससे खफा होती थी। उसने अपना बेड साइड टेबल लैंप भी ऑफ कर लिया था। मैंने वसीम को ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम इस तरह नाराज़ होकर बैठो। सालार ने मुफाहमत की कोशिशों का आगाज़ किया। वो उसी तरह करवट दूसरी तरफ लिए बेहिस्सो हरकत लेटी रही। इमामा, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। सालार ने कंबल खींचा था। तुम अपने छोटे भाई अम्मार को वही गाली देकर दिखाओ। उसके तीसरी बार कंबल खींचने पर वो बेहद खफगी से उसकी तरफ करवट लेते हुए बोली। सालार ने बिला तवक्कुफ वही गाली अम्मार को दी। चंद लम्हों के लिए मामा की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। अगर दुनिया में ढिठाई की कोई मेराज थी तो वो था। मैं पापा को बताऊंगी। इमामा ने बिलाखिर सुर्ख चेहरे और भर्राई हुई आवाज़ में कहा। तुमने कहा था अम्मार को गाली देने को। वो वैसे ही इत्मीनान से बोला था। वैसे तुम्हारे भाई को इससे ज़्यादा ख़राब गालियाँ मैं उसके मुंह पर दे चुका हूँ और उसने कभी माइंड नहीं किया। और अगर तुम चाहो तो अगली बार जब वो यहाँ आएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूँगा। वो जैसे करंट खाकर उठकर बैठी थी। तुम वसीम को यहाँ मेरे सामने गालियाँ दोगे? उसे बेहद रंज हुआ था। जो कुछ उसने किया है, मेरी जगह कोई भी होता तो उसे गालियाँ ही देता, और इससे ज़्यादा बुरी। सालार ने लगी लिपटी के बगैर कहा। लेकिन चलो, आई एम सॉरी। वो इस बार फिर उसकी शक्ल देख कर रह गई थी। सिकंदर उस्मान ठीक कहते थे। उनकी वो औलाद समझ में ना आने वाली चीज़ थी। लेकिन पापा, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। मेरी तो कोई बात नहीं टालता। उसने एक बार सिकंदर के पूछने पर कि वो उसका ख्याल रखता था के जवाब में सालार की तारीफ़ की थी। इमामा, ये जो तुम्हारा शौहर है, ये दुनिया में अल्लाह ने सिर्फ़ एक पीस पैदा किया था। 30 साल मैंने बाप के तौर पर जिस तरह इसके साथ गुजारे हैं वो मैं ही जानता हूँ। अब बाकी की ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है इसके साथ। ये तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है और तुम्हें कभी पता नहीं चल सकता। इसने जो करना होता है वो करना होता है, चाहे सारी दुनिया ख़त्म हो जाए उसे समझा समझा कर। और कभी खुशफहमी में मत रहना कि ये तुम्हारी बात मानकर अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा। सालार सर झुकाए मुस्कुराता हुआ बाकी बातें सुनता रहा था और वो कुछ उलझी नज़रों से बारी बारी उसे और सिकंदर को देखती रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा तुम्हें कि सालार चीज़ क्या है। ये पानी में आग लगाने वाली गुफ्तगू का माहिर है। सालार ने किसी एक बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। सिकंदर के पास से वापसी के बाद इमामा ने सालार से कहा, तुम्हारा इम्प्रेशन बहुत ख़राब है पापा पर। तुम्हें कोई वजाहत करनी चाहिए थी। कैसी वजाहत? वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तुम्हें उनकी बातें गौर से सुननी चाहिए थी। और तब भी उसका मुंह देख कर रह गई थी और वो अब भी उसका मुंह देख रही थी। आई एम सॉरी। तुम शर्मिंदा तो नहीं हो? उसने उसे शर्मिंदा करने की एक आखिरी कोशिश की। हाँ, वो तो मैं नहीं हूँ, लेकिन चूँकि तुम्हें मेरा सॉरी कहना अच्छा लगता है इसलिए आई एम सॉरी, उसने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। इमामा ने जवाब देने की बजाय बेड साइड टेबल पर पड़ा पानी का पूरा गिलास पिया और दोबारा कंबल खींच कर लेट गई। पानी और ला दूँ? वो उसे छेड़ रहा था। इमामा ने पलट कर नहीं देखा।
वो नींद में सेल फ़ोन की आवाज़ पर हड़बड़ाई थी। वो सालार का सेल फ़ोन था। हेलो। सालार ने नींद में करवट लेते हुए साइड टेबल से फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव की। इमामा ने दोबारा आंखें बंद कर ली। हाँ, बात कर रहा हूँ, उसने सालार को कहते सुना। फिर उसे महसूस हुआ जैसे वो यकदम बिस्तर से निकल गया था। इमामा ने आंखें खोलते हुए नींद तारीकी में उसे देखने की कोशिश की और लाइट ऑन किए बगैर अंधेरे में ही कमरे से निकलकर लाउंज में चला गया था। वो कुछ हैरान हुई थी। वो किसका फ़ोन हो सकता था जिसके लिए वो रात के इस पहर यूं उठकर कमरे से गया था। आंखें बंद किए वो कुछ देर उसकी वापसी का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक नहीं आया तो वो कुछ बेचैन उठकर कमरे से लाउंज में आई थी। वो लाउंज के सोफे पर बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए वो फ़ोन पर बात करते करते रुका। एक जीन्स और शर्ट पैक कर दो मेरी, मुझे अभी इस्लामाबाद के लिए निकलना है। क्यों, खैरियत तो है? वो परेशान हुई थी। स्कूल में आग लग गई है। उसकी नींद पलक झपकते में गायब हुई थी। सालार अब दोबारा फ़ोन पर बात कर रहा था। बेहद तशवीश के आलम में कमरे में वापस आकर उसने उसका बैग तैयार किया। वो तब तक कमरे में वापस आ चुका था। आग कैसे लगी ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। और बेहद उजलत में अपने लिए निकाले हुए कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया। वो बैठी रही। वो उसकी परेशानी का अंदाज़ा कर सकती थी। शादी के शुरू के चंद महीने छोड़कर अब ऊपर नीचे कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जो उन्हें बुरी तरह तकलीफ़ पहुंचा रहा था। 10 मिनट में वो तैयार होकर निकल गया, लेकिन वो दोबारा बिस्तर में नहीं जा सकी थी। उसने बाकी की सारी रात इसी परेशानी में दुआएं करते हुए काटी थी। सलार से उसकी एक दो बार चंद मिनट के लिए बात हुई, लेकिन वो फ़ोन पर मुसलसल मसरूफ़ था। इमामा ने उसे डिस्टर्ब करने से गुरेज किया। उसके गांव पहुंचने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। वजह फायर ब्रिगेड का बरवक्त दस्तयाब न होना था, और आग का इतने घंटों के बाद भी ना बुझ पाने का मतलब क्या था वो इमामा अच्छी तरह से समझ सकती थी। वो पूरा दिन जले पांव बिल्ली की तरह घर में फिरती रही थी। सालार ने बिलाखिर उसे आग पर काबू पाने की इत्तला दे दी थी, मगर साथ ये भी कहा था कि वो उसे रात को कॉल करेगा, और वो इस रात इस्लामाबाद ही रहने वाला था। उस दिन वो सारा दिन कुछ खा नहीं सकी थी। इमारत को कितना नुकसान पहुंचा था ये उसे नहीं पता था, लेकिन कई घंटे लगी रहने वाली आग क्या कुछ कर सकती थी, उसका एहसास उसे था। सालार से बिलाखिर आधी रात के करीब उसकी बात हुई थी। वो आवाज़ से इतना थका हुआ लग रहा था कि मामा ने उससे ज़्यादा देर बात करने की बजाय सोने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन वो खुद सारी रात सो नहीं सकी थी। आग इमारत में लगाई गई थी। वहाँ पुलिस को इब्तदाई तौर पर ऐसे शवाहद मिले थे, और ये मामूली सी बात इमामा के नींद और हवास को बातिल करने के लिए काफ़ी थी। वो सिर्फ सालार का स्कूल नहीं था, वो पूरा प्रोजेक्ट अब एक ट्रस्ट के तहत चल रहा था जिसकी मेन ट्रस्टीज़ सालार की फैमिली थी। और इस प्रोजेक्ट को यकदम इस तरह का नुकसान कौन पहुंचा सकता था? यही वो सवाल था जो उसे होला रहा था। सब कुछ जैसे फिर चंद हफ्ते पहले वाली स्टेज पर आ गया था। वो अगले दिन रात को घर पहुंचा था और उसके चेहरे पर थकन के अलावा दूसरा कोई तासुर नहीं था। वो अगर कुछ और देखना चाहती थी तो मायूस हुई थी। वो नॉर्मल था। उसे जैसे हौसला हुआ था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। जिस कंपनी ने बिल्डिंग बनाई है वो कुछ एग्जामिन कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। शायद बिल्डिंग गिराकर दोबारा बनानी पड़े। खाने की टेबल पर उसके पूछने पर उसने इमामा को बताया था। बहुत नुकसान हुआ होगा। यह अहमकाना सवाल था, लेकिन इमामा हवास बाख्ता थी। हाँ, जवाब मुख्तसर था। स्कूल बंद हो गया। ये एक और अहमकाना सवाल था। नहीं, गांव के चंद घर फौरी तौर पर खाली करवाए हैं और किराए पर लेकर स्कूल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स को शिफ्ट किया है वहाँ पर। लकीली अभी कुछ दिनों में समर ब्रेक आ जाएगी तो बच्चों का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो खाना खाते हुए बताता रहा। और पुलिस ने क्या कहा? इधर उधर के सवाल के बाद इमामा ने बिलाखिर वो सवाल किया जो उसे परेशान किए हुए था। अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, देखो क्या होता है। सलार ने गोलमोल बात की थी। उसने उसे ये नहीं बताया था कि 2 दिन इस्लामाबाद में वो अपनी फैमिली के हर फर्द से इस केस के सस्पेक्ट्स में इमामा की फैमिली को शामिल करने के लिए दबाव का सामना करता रहा था। वो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। इस प्रोजेक्ट को चलाने में बहुत से लोगों के अतियात इस्तेमाल हो रहे थे और इस नुकसान के मुतासरीन बहुत से थे। कई साल से आराम से चलने वाले इस स्कूल का कोई दुश्मन पहले कभी पैदा नहीं हुआ था, और अब इमामा से ज़्यादा वो खुद ये दुआ कर रहा था कि ये आग इत्तफाकी हादसा हो। मगर चंद घंटों में ही आग के स्केल और सूरत हाल से अंदाज़ा हो गया था कि वो प्लान शुदा आतिश ज़दगी थी
और अगले चंद घंटों में कुछ और शवाहद भी मिल गए थे। इमामा से ये सब शेयर करना हमाकत थी। वो पिछले तजर्बे के बाद इस तरह की किसी दूसरी परेशानी में कम से कम उसे डालना नहीं चाहता था। अब क्या होगा? तीसरा अहमकाना सवाल। सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा और बस। जवाब उतना ही सादा था। और फंड्स, वो कहाँ से आएंगे? ये पहला समझदाराना सवाल था। एंडोमेंट फंड स्कूल का है, उसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की है, वहाँ से रकम निकलवाऊंगा। वो इस्लामाबाद का प्लाट बेच दूंगा। फौरी तौर पर तो थोड़ा बहुत कर ही लूँगा, इतना कि स्कूल की बिल्डिंग दोबारा खड़ी हो जाए। प्लॉट्स क्यों? वो बुरी तरह बिदकी थी। इमामा ने नोटिस नहीं किया था कि वो प्लाट्स नहीं प्लाट कह रहा था। इससे फौरी तौर पर रकम मिल जाएगी मुझे, बाद में ले लूँगा। अभी तो फौरी तौर पर इस मेस से निकलना है मुझे। तुम वो हक महर की रकम ले लो। 8 लाख, 8-10 लाख के करीब वेडिंग पर मिलने वाली गिफ्ट की रकम भी होगी, और इतने ही मेरे अकाउंट में पहले से भी होंगे। 50-60 लाख तो ये हो जाएगा। और सलार ने उसकी बात काट दी। मैं ये कभी नहीं करूँगा। कर्ज ले लो मुझसे, बाद में दे देना। नो, उसका अंदाज हतमी था। मेरे पास बेकार पड़े हैं, सलार तुम्हारे काम आएंगे तो। उसने फिर इमामा की बात काट दी। आई सेड नो, उसने इस बार कुछ तुर्शी से कहा था। मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे में कोई फ़र्क है? हाँ है, उसने उसी अंदाज में कहा था। वो हक महर और शादी पर गिफ्ट में मिलने वाली रकम है, मैं कैसे ले लूँ तुमसे? मैं बेशर्म हो सकता हूँ, बेगैरत नहीं हो सकता। अब तुम ख्वामख्वाह जज्बाती हो रहे हो। और सलार ने उसकी बात काट दी। कौन जज्बाती हो रहा है? कम से कम मैं तो नहीं हो रहा। वो उसे देख कर रह गई थी। मैं तुम्हें कर्ज दे रही हूँ सालार। थैंक यू वेरी मच, बट आई डोंट नीड। मुझे कर्ज लेना होगा तो बड़े दोस्त हैं मेरे पास। दोस्तों से कर्ज लोगे, बीवी से नहीं। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ सालार। इमोशनली करो, फाइनेंशियली नहीं। वो उसे देखती रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह कायल करे। और अगर मैं ये रकम डोनेट करना चाहूँ तो? उसे बिलाखिर ख्याल आया, ज़रूर करो। इस मुल्क में बहुत सी चैरिटीज़ हैं। तुम्हारा पैसा है, चाहे आग लगा दो, लेकिन मैं या मेरा इदारा नहीं लेगा। उसने साफ लफ्ज़ों और हतमी अंदाज में कहा। तुम मुझे कभी कुछ डोनेट नहीं करने दोगे? ज़रूर करना, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। वो टेबल से उठ गया। वो बेहद अपसेट उसे जाता देखती रही थी। उसके लिए वो 2 प्लाट उसके घर की पहली 2 ईंटें थी, और वो पहली 2 ईंटें इस तरह जाने वाली थी। ये चीज़ उसके लिए तकलीफ़ दे थी। तकलीफ़ का बाइस वो एहसास जुर्म भी था जो वो इस सारे मामले में अपनी फैमिली के इन्वॉल्व होने की वजह से महसूस कर रही थी। वो कहीं ना कहीं इस रकम से जैसे इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश करना चाहती थी जो उसकी फैमिली ने किया था। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि सालार ने उसकी इस सोच को पहले से पढ़ लिया था। वो जानता था वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। आने वाले दिनों में भी वो सालार को वो रकम लेने पर मजबूर करती रही, लेकिन वो एक बार भी ये जुर्रत नहीं कर सकी थी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सालार से कुछ पूछती। वो दोनों जानते बूझते इस हसास इशू पर गुफ्तगू से इज्तनाब कर रहे थे, और ये इमामा के लिए एक नेमत मुतबरका से कम नहीं था। जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना ही कोई इन्वॉल्वमेंट है। उसके सामने बैठा वसीम बड़ी संजीदगी से उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब अब्बू कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने भी ऐसा कुछ ना किया हो। मैंने घर में ऐसा कुछ नहीं सुना। वसीम ने हाशिम मुबीन का भी दिफा करने की कोशिश की थी। इमामा कायल नहीं हुई। और सालार के सामने अपनी फैमिली का दिफा करने की कोशिश कर सकती थी, वसीम के सामने नहीं। उसे यकीन था ये जो कुछ भी हुआ था इसमें उसके अपने बाप का ही हाथ था। अब्बू से कहना ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। सालार को क्या नुकसान होगा या मुझे क्या नुकसान होगा? एक स्कूल ही जला है, फिर बन जाएगा। उनसे कहना वो कुछ भी कर लें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वसीम उसका चेहरा देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने इमामा से मध्यम आवाज़ में कहा, मैं अब्बू से ये सब नहीं कह सकता। मैं बहुत बुज़दिल हूँ, तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। चंद लम्हों के लिए वो दोनों एक दूसरे को देख कर रह गए। जब से वो दोबारा मिलना शुरू हुए थे, आज पहली बार वो ढके छुपे लफ्ज़ों में उसे सराह रहा था या इतराफ़ कर रहा था। तुम्हारे जाने के बाद इतने सालों में बहुत दफ़ा कमज़ोर पड़ा। मैं बहुत दफ़ा शशो पंज का भी शिकार हुआ और शको शुबे का भी। बहुत दफ़ा दिल चाहता था ज़िंदगी के इस गुबार को मैं भी ख़त्म करने की कोशिश करूं, जिसने मेरी बिनाई धुंधलाई हुई है। लेकिन मैं बहुत बुज़दिल हूँ। तुम्हारी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जा सकता था।
अब आ जाओ। इमामा को खुद एहसास नहीं हुआ उसने ये बात उससे क्यों कह दी और कहनी चाहिए थी कि नहीं। वसीम ने उससे नज़रें नहीं मिलाई, फिर सर हिलाते हुए कहा, अब और भी ज़्यादा मुश्किल है। जब अकेला था तो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सका था, अब तो बीवी और बच्चे हैं। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं और सालार। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को। तुम्हें एक बार कोशिश तो करो। इमामा भूल गई थी उसने वसीम को क्या डिस्कस करने के लिए बुलाया था और वो क्या डिस्कस करने बैठ गई थी। इंसान बहुत खुदगर्ज और बेशर्म होता है इमामा। ये जो ज़रूरत होती है ये सही और गलत की सब तमीज़ ख़त्म कर देती है। काश मैं ज़िंदगी में मज़हब को पहली प्रायोरिटी बना सकता, मगर मज़हब पहली प्रायोरिटी नहीं है मेरी। वसीम ने गहरा सांस लिया था, जैसे कोई रंज था जिसने बगूला बनकर उसे अपनी लपेट में लिया था। मैं तुम्हारी तरह फैमिली नहीं छोड़ सकता मज़हब के लिए। तुम्हारी कुर्बानी बहुत बड़ी है। तुम जानते बूझते जहन्नुम का इंतखाब कर रहे हो, सिर्फ दुनिया के लिए। अपने बीवी बच्चों को भी इसी रास्ते पर ले जाओगे, क्योंकि तुम में सिर्फ जुर्रत नहीं है सच को सच और झूठ को झूठ कहने सच को सच और झूठ को झूठ कह देने की। वो अब भाई को चैलेंज कर रही थी। वो यकदम उठकर खड़ा हो गया, यूं जैसे बेकरार था। तुम मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डालना चाहती हो, आजमाइश से बचाना चाहती हो। आजमाइश तो वो है जिसमें तुमने खुद को डाल रखा है। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठा ली। मैं सिर्फ इसीलिए तुमसे मिलना नहीं चाहता था